الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم سورۃ البینہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ جس میں آخری آیات ہم نے لی تھی. آخری آیت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ ہے جو سب سے بہترین مخلوق ہے. تو یہاں پر بیان ہوا تھا کیا انسان جو ہے نیک مومن متقی پرہیزگار فرشتوں سے بھی بہتر ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے. بعض کہتے ہیں کہ چونکہ فرشتے نوری مخلوق ہے اور ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر لگے ہیں، اس لحاظ سے وہ انسان سے بہتر ہے. لیکن بیان ہوا تھا کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے نیکی اور برائی کا، پھر وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے، برائی سے بچ کر نیکی کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ کئی چیزیں ہیں کہ جو اس کے امتحان کے طور پر اس کے ساتھ لگا دی. اس کا نفس ہمارا نسو ہے جو اس کے اندر ہی ایک وہ نفس ہے کہ جو اس کو برائی پر اکساتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ وہ قرین شیطان لگا دیا ہے کہ جو اس کو ہمیشہ غلط چیزوں پر آمادہ کرتا ہے، اور ابلیس شیطان بھی اس کے پیچھے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا کی ضروریات بھی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بھی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ انسان جو کہ اپنا اختیار کا صحیح استعمال کر کے شیطان، اپنے نفس ہمارا اور ان چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو صحیح رستے پر لگاتا چلاتا ہے، کوئی شک نہیں کہ ان فرشتوں سے بہتر ہے کہ جن کے پاس نہ تو برائی کرنے کا اختیار ہے اور نہ ان کے پیچھے کوئی شیطان ہے ان کو گمراہ کرنے والا، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی نفس ہمارا سوء یعنی کہ برا نفس ہے کہ جو ان کو برائی پر آمادہ کرے، اور نہ ہی بلکہ ان کی کوئی خواہشات ضروریات ایسی کہ جن ضروریات کی بنیاد پر انسان باوقات جو غلط کام کر بیٹھتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی شک نہیں کہ انسان جو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلاتا ہے، اللہ کی اطاعت پر لگاتا ہے، وہ فرشتوں سے بہتر ہے. اور اس سے ہمیں انسان کا اپنے مرتبہ مقام کا اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے کہ خیر البریہ کے اندر سب سے بہتر مخلوق. اس کے بعد میں کہ جزاء ربی، ان ایمان والوں کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ یہ ہے عند ربہم، ان کے رب کے جزاؤہم عند ربہم، اور عند ربہم کا لفظ جب بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے. اس میں تین بڑی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے جو انعام اور بدلہ ملنے والا ہے وہ یقینی ہے. ہم دنیاوی طور پر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جو بڑا قابل اعتماد ہو اور بڑا شخص بڑا آدمی ہو کہے کہ بھی تمہارا وعدہ تمہارا وعدہ میں نے پورا کرنا ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ وعدہ پورا ہوگا، چیز مل جائے گی. تو چیز ہے کہ کائنات کا رب کہے کہ ان کا مطلب میرے پاس ہے. اس میں ایک تو اس بدلے کے ملنے کی یقینی ہے، اور دوسری چیز کہ رب کائنات کی طرف سے جو بدلہ ملے گا وہ کیسا ہوگا. ہم انسانوں کے لحاظ سے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں انعام دوں گا تو میری طرف سے ملنے والے انعام کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ کوئی 10-20 دینار ہو سکتے ہیں. اگر بادشاہ کہے کہ میں تمہیں انعام دوں گا تو بادشاہ کے انعام ہماری بات ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا. اور جب رب کائنات کہے کہ ان کا انعام میرے پاس ہے
तो यहाँ से पता चलता है कि वो इनाम कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा बदला है। और तीसरी चीज़ उलमा ये भी कहते हैं इंद रब्बिहिम के अंदर ये भी है, उनके रब के पास यानी जन्नत के आला दर्जे, क्योंकि जन्नत अगर जन्नत है लेकिन उसके भी बहुत ऊंचे नीचे मुकामात हैं। और सबसे ऊंची और सबसे आला जन्नत कौन सी है, जिसके बारे में आप आते हैं फिरदौस, जो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है, और वहीं से जन्नत के दरिया और नहरें फूटते हैं। तो ये है इंद रब्बिहिम का माना, तो उनका बदला उनके रब के पास है। जैसे हमें बहुत अजीम शान उस बदले का इनाम का अंदाजा होता है। वो क्या है, जन्नत अदन, वो हमेशा रहने वाली जन्नतें, जन्नतों की और बेशक बेशुमार नेमतें हैं। वो नेमतें हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए, अपने बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया दिया है जो किसी आँख ने कभी देखा नहीं, और किसी कान ने कभी सुना नहीं, और न कभी किसी के दिमाग में उसका तस्वुर आया है। फिर जन्नत की वो नेमतें कि जो इंसान के तस्वुरात से बाला है। और हमने कल भी जिक्र किया था कि सबसे कम तरीन जो जन्नती है, सबसे कम तरीन जिसका जन्नत में मुकाम दर्जा होगा, अल्लाह ताला खुद उसको तमन्ना करने की, उसको ऑफर करेगा, मौका देगा, उसकी तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी, जो तमन्ना कर सकता करेगा, अल्लाह ताला खुद उसको याद दिलाएगा कि जन्नत में ये भी कुछ है, वो भी कुछ है। जब सभी कुछ मांग लेगा तो अल्लाह मायदे तेरे लिए वो कुछ जो तुमने मांगा और इससे 10 गुना और ज्यादा। और दूसरी रिवायत में है कि जन्नत में सबसे अदना, सबसे कम दर्जे का जन्नती है, उसकी जन्नत इतनी बड़ी होगी कि जितनी बड़ी किसी दुनिया के बहुत बड़े बादशाह की सल्तनत है, और उससे 10 गुना ज्यादा। इससे हमको अंदाजा हो जाता है कि बावकात इंसान दुनिया की मामूली किस्म की चीज़ों के पीछे जो दौड़ लगाए फिरता है, उस जन्नत को भूल कर, उसको नजरअंदाज करके ये फिर कहाँ की जन्नती है और ये क्या है। तो बात कर रहे हैं कि जन्नतों की नेमत अलग से बहुत सारी बेशुमार है, लेकिन जन्नत की एक खास नेमत किस चीज़ की है कि वो हमेशा के लिए है। न कभी जन्नत खत्म होने वाली, न उसके कभी नेमतें खत्म होने वाली, और न जन्नत वाले उसमें कभी खत्म होने वाले। सही हदीस में है कि जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो उनको अल्लाह की तरफ से मुनादी की जाएगी, आवाज़ दी जाएगी, क्या जन्नत वालों तुमको हमेशा रहना है, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहना, हमेशा जवानी होगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार ना होगे, और ये नेमतें जो तुमको मिली है हमेशा मिलती ही रहेगी, इसमें कोई कमी ना हो। तो जन्नत की एक बहुत बड़ी खूबसूरत इस चीज़ की है कि वो हमेशा के लिए। दुनिया में अगर किसी को बहुत बड़ा पैलेस मिल जाए कि जिस पैलेस में हर तरह की दुनिया की नेमतों का जो आदमी तसव्वुर कर सकता उसमें, लेकिन उसको कह दिया जाए कि आपको चंद दिन के बाद, चंद महीनों के बाद इसे छोड़ना है, इसे निकलना है, तो वहीं पर आदमी के मजे कत्ल हो जाते हैं। कि जन्नत जो है आदनीन हमेशा के लिए, जन्नत आदनीन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, के जिनके नीचे से नहर बहती है। जिन नहरों का अल्लाह दूसरी सूरत में जिक्र किया है कि नहरें बिल्कुल पानी की नहीं होती, पानी की दुनिया की तरह, शहद की, दूध की, शराब की, और ऐसे पानियों की कि जिनके अंदर किस तरह की कोई गंदगी, इस तरह की ऐसी चीज़ नहीं। खालिदीन फीहा अबदा, अब जन्नतें तो हमेशा के लिए है, लेकिन जन्नती भी उसमें हमेशा के लिए। खालिदीन फीहा, उसमें रहेगा वो अबदन, हमेशा हमेशा। खालिदीन का माना भी हमेशा है, और फिर अबदन के साथ उसकी ताकीद करके कि वो हमेशा हमेशा जो कभी खत्म ना होने वाला। अब ये वो चीज़ें हैं कि दुनिया में हमारे तसव्वुरात की बात है, क्योंकि दुनिया में हमारे यहाँ हर चीज़ की लिमिट है, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, कितना एक लिमिट होती है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं, वो हमेशा हमेशा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जन्नत की खाने पीने की, रहने सहने की जो नेमतें हैं वो है और बेशुमार है, जिसका जिक्र हुआ। लेकिन उन सभी नेमतों से बड़ी नेमत क्या है, सूरह तौबा में अल्लाह आता है, वरिद्वान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की तरफ से बंदों को जो मिलने वाली तमन्नी है
उन तमाम नेमतों से बालतर हो। तो यहाँ पर माता है वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, हमारा और वो अल्लाह से राजी हो गया। ये है अहले जन्नत पर जन्नत वालों के लिए सबसे बड़ा ऊंचा मुकाम कि जब वो अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक चले हैं, अल्लाह को राजी करके गए हैं, तो अल्लाह ताला जब राजी होता है तो राजी होकर अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या देता है। लेकिन आखिर जुमले के आखिर में, आयत के आखिर में एक बड़ी शर्त बयान करती है। वो शर्त क्या है? ज़ालिका लिमन खशिया अल्लाह। ये जनते हैं हमेशा हमेशा, ये नेमतें बहुत बड़ी हैं, अल्लाह की रज़ामंदी जो सबसे बढ़कर है, लेकिन किसके लिए है? ज़ालिका, ये सारी नेमतें हैं लिमन खशिया अल्लाह, जो अपने रब से डर गया। और खशिया का माना वो खशियत कि जो अल्लाह ताला को, यानी कि अल्लाह तन्हाइयों में हो, खलबतों में हो, अल्लाह ताला की अज़मत हैबत के साथ हो। कुरान करीम में बल्कि अरबी में दोनों लफ्ज़ आते हैं, खौफ का भी और खशियत का, खौफ और खशियत, और दोनों लफ्ज़ हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। खौफ का लफ्ज़ होता है कि किसी का डर होना, वो जरूरी नहीं कि आपको पता हो कि कौन है, जरूरी कि बहुत बड़ी चीज़ हो, पल का भूल ही जाए। जानवर से आदमी डरता है, सांप से डरता है, खौफ है, तो सांप से खौफ है, खशियत नहीं। खशियत कब होती है? कि जब आपके दिल में किसी ऐसी हस्ती का डर हो कि ना कि वो बड़ी है, अजमत वाली है, बल्कि आपके दिल में उसकी मोहब्बत हो, उसकी ताज़ीम हो, तो ऐसा ऐसा खौफ डरते हो, उसको खशियत कहते हैं। मैं अल्लाह ताला कि ये जन्नतें उनके लिए है जो अपने रब से डर गया, खशियत इख्तियार कर ली, तन्हाइयों में, खलबतों में, उन जगहों पर भी अल्लाह का डर हो। और ये असल यही वो चीज़ है जिससे सच्चे ईमान का अंदाजा होता पता चलता है। ईमान का दावा तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन सच्चे ईमान का पता वो चलता है जब आदमी खलबतों होते, तन्हाइयों में भी अल्लाह का डर हो। और खुसूस आजकल का दौर, सोशल मीडिया का दौर जो है, ये खलबतों के गुनाहों का दौर है। आदमी लोगों के साथ बात का बहुत अच्छा, बहुत नेक और बहुत अखलाक किरदार उसका अजीम होता है, लेकिन बंद कमरों के अंदर बिस्तरों पर बैठकर, अलग बैठकर क्या क्या मोबाइल में देखा जाता है, क्या क्या स्क्रीनों में देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वहाँ पर बावजूद ऐसी चीज़ें होती है सामने कि जहाँ से इंसान को पता चलता है कि वाकई अल्लाह का खौफ है। इसलिए हर सोमवार की हदीस आजमाते हैं कि मेरी उम्मत के ऐसे लोग क़यामत के दिन आएंगे कि जिन्होंने पहाड़ों की तरह देखी होंगी, और आपने पहाड़ भी, दहाबा के पहाड़ जो के मक्का के आगे ऊंचे पहाड़, आप उनकी मिसाल दी, वो इतने ऊंचे पहाड़ों की मान उनकी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को गर्दो गुबार बना के उड़ा देगा। साहबा ने पूछा क्यों? आप कि वो जब तन्हाइयों में होते हैं तो अल्लाह की राह में बने, लोगों के सामने अच्छे होंगे, लेकिन अकेले हैं अलग से तो वो चीज़ें करेंगे जो लोगों के सामने करते हैं। इसका माना क्या है? कि लोगों का डर है अल्लाह का। हकीकत यही है। और आज अक्सर बेशतर यही हाल है। अक्सर बेशतर हम खुद बल्कि जबान से खुद कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यानी ये जुमला किस बात का माना देता है कि अल्लाह का डर हो तो अल्लाह देख रहा है, ये कहना चाहिए। समझे? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह को कल हिसाब देना है, अल्लाह के सामने कल खड़े होना है। असल तो ये होना चाहिए, लेकिन हमारी जबान पर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। गलत काम करते हैं लोगों की खातिर, नहीं छोड़ते क्यों कि लोग क्या कहेंगे, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह का हुक्म लेके छोड़ते हैं, नहीं करते, हाँ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये हमारी नेकियां, हमारे गुनाहों को छोड़ना लोगों की खातिर। इसे जमाता है जारी कलिमत खशिया अल्लाह। ये जनते जरूर है बहुत अजीब शान है, लेकिन उनके लिए है जो खलबतों के तहानियों में अल्लाह से डरे, कि वाकई दिल में अल्लाह का खौफ है, जिसका खौफ की वजह से आदमी तनहा हो, लोगों के अंदर हो, रोशनी में हो, अंधेरे में हो, दिन में हो, रात में हो,
ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا بڑا خوف اس کو برائی سے ہوتا ہے. تو یہ ہے ملزمتی اور یہ ہے ملزمتوں کو پانے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان اور اپنے دلوں میں اپنے ڈر اور خوف اور خشیت پیدا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیک.